All right, everyone, let's continue. Everybody, let's move to the next part. Effective annual yield. Everybody over here, let's move to the next part, effective annual yield. It's very important. बहुत जन confuse हो जाते हैं starting में थोड़ा इसमें, but this part is very important. It's very easy. Time 0, time 1 year. मैं अगर यहाँ पे 1 इन्वेस्ट करता हूँ, it becomes 1.12 if you had 12% per annum. Compounded annually. So 12% is a rate per annum compounded annually. So if you invest 1 today, after 1 year it will become 1.12. Obvious सा बात है. Let's say the same thing compounded semi-annually. Semi-annually का मतलब क्या होगा? Semi-annually मतलब you will get interest बीच में semi-annually and उसके बाद वापस you will get interest over here. यहां पे जब आप 1 डिपॉजिट कर रहे थे, यू आर गोइंग टू गेट 12% पूरा का पूरा यहां पे. बट सेमी एनुअली मतलब 1 becomes 1.06 over here. You will get 6% in the middle of 6 months. So next 6 months पे you will not earn 6% on the only 1 का amount, but you'll also earn extra 6% on the 6 का amount which you're getting in between. Compounding का ये तो क्वालिटी है. So ultimately the amount will become 1.06 square over here. इसमें आप 1 पे पूरा 12% कमा रहे थे, इसमें आप 1 पे 6% कमा रहे हो, एंड अब यहां 1.06 पे 6% कमा रहे हो, तो 6 के ऊपर 6% एक्स्ट्रा आ रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस वन में यहां पे 1 डाले, यहां पे 1.12 आया. यू आर नॉट अर्निंग एनी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बट ओवर हियर यू आर पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 6% ओवर हियर एंड यू विल बी अर्निंग एन एडिशनल 6% ऑन द 6% का इंटरेस्ट, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट इज पेड ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस. बोलो कंफर्टेबल? सो दैट इज दिस अमाउंट इज इक्वल टू 1.1236. Your effective annual yield is equal to 12.36%. Effectively, annually, आपका yield कितना हुआ? 12.36%. Because for every $1 that you invest at time 0, it becomes 1.1236 at time 1 year. So effectively over a year, over a per annum basis, on a per annum basis, you end up earning 12.36% return. Is that correct, everyone? So you end up earning 12.36% return on an effective basis. So 12% is a rate per annum compounded semi-annually. The rate is 12%, but uska compounding is happening on a semi-annual basis. Let's take another example. 0 and 1 year. Let's say we take it quarterly basis this time. Quarterly basis matlab 1 will become 1.03, 1.03 square, 1.03 cube, and last में 1.03 to the power 4, that is 1.1255. So effectively, you're earning a 12.55% return on a per annum basis. ऑब्वियस सा बात है, जितना कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर पेड इंटरेस्ट ओवर हियर, द मोर द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होल्डिंग द इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट, योर इफेक्टिव एनुअल यील्ड विल इंक्रीज. इफेक्टिवली ज्यादा कमाएंगे, जितना ज्यादा बार इंटरेस्ट दोगे उतना इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे. यहां पे खाली 6 के ऊपर में इंटरेस्ट कमा रहे थे, यहां 3 के ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाए. You earn 3% first, then you earn 3% on 1 and on 3. तो ये तो अल्टीमेट अमाउंट तो 6 से ज्यादा हो गया. 6 से ज्यादा वाला अमाउंट पे वापस 3%, फिर उस अमाउंट पे वापस 3%. योर इफेक्टिव एनुअल यील्ड इज 12.55%. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ नहीं है, 1 प्लस 0.12. सपोज सेमी एनुअल था तो डिवाइड बाई 2 इंटू 2 किया, क्वार्टरली था तो डिवाइड बाई 4 इंटू 4 किया. 1 प्लस आर बाई एम होल टू द पावर n इंटू एम, दैट इज योर अमाउंट प्रिंसिपल इंटू दिस. A is equal to P into 1 plus R to the power n की जगह A is equal to principal into 1 plus R by M to the power n into M. R by M क्यों? 12% per annum था, तो we are just talking about कि आपको तो इंटरेस्ट एवरी क्वार्टरली बेसिस पे मिल रहा है, तो एक क्वार्टर में 1 का कितना बना एंड कितने क्वार्टर्स हुए? N is the number of years, M is the compounding frequency, the number of times it is paying interest in a year. N is the number of years, M is the compounding frequency. If you are confused, लिख लेंगे तो लिख लीजिए. अल्टीमेटली क्या होता है ना, इन टोटलिटी इफ यू सी, दिस इज द रेट पर पीरियड एंड दिस इज द नंबर ऑफ पीरियड्स और नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स.
अगर अपना सेमी एनुअल पीरियड है, अगर अपना सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, सो इन दैट केस रेट पर पीरियड क्या है? फॉर एवरी 6 मंथ्स व्हाट इज द रेट यू आर गेटिंग? 6%. सो 1 + 6%. एंड सपोज 5 years का अगर करोगे तो पार में 10 आएगा, बिकॉज हाउ मेनी नंबर ऑफ 6 months आर देयर इन 5 years? 10 6 months पीरियड्स आर देयर इन 5 years. 5 years में 6 months का कितना टाइम्स आएगा? 10 times. So that is that 5 years into 2. एंड ऐसे भी 1 becomes 1.06 square in 1 year. तो 5 years में कितना होगा? होल टू द पावर 5 एंड a to the power x to the power y is equal to a to the power xy. इससे ज्यादा इंडेक्स नंबर नहीं लगेगा, सो टेंशन मत लो मैथ्स को लेके. दैट इज ऑल द इंडेक्स नंबर दैट आई गोना यूज. इतना तो कर ही सकते हैं. बोलो, इज एवरीबडी कंफर्टेबल? एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मुलाज फॉर द बेसिक. फॉर मी इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू जस्ट गिव यू द फॉर्मुला, लर्न कर लो एंड सम करा के छोड़ दो. इट वुड बीन वेरी इजी फॉर मी टू डू दैट वे. बट इतने कैलकुलेशंस आएंगे, इतना कुछ आएगा आगे, wherein if you understand the basic, it will be very easy for you. If you are mugging up, it will be very big problem for you. देखो, see if this is fine for you. So it is always 1 plus the rate per period, and compounding frequency is the number of periods in the par that you'll find over here. Number of years into the compounding frequency will tell you the number of periods. Quarter अगर है तो 5 years में कितना quarter? 5 into 4 20 quarters. That is the number of quarters you have. And per quarter rate कितना होगा? 1 plus 3%. 1 becomes 1.03, 1.03 square, 1.03 cube, 1.03 to the power 4. So 12% per annum compounded annually and 12% per annum compounded quarterly is absolutely not the same. 12% per annum compounded quarterly and 12% per annum compounded annually is absolutely different. इफेक्टिव एनुअल यील्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं $1 डालता हूं तो 1 year के बाद मेरे को एग्जैक्टली कितना यील्ड मिल रहा है. सो इन केस ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग, इफेक्टिवली इफ यू पुट 1 over here, कंपाउंडिंग लेकर के इट बिकम्स 1.1255. सो इफेक्टिवली योर रेट ऑफ रिटर्न, योर रिटर्न दैट यू हैव रियलाइज्ड इज 12.55%. इफेक्टिवली एनुअली यील्ड कितना आया पूरा एक साल में? इफेक्टिवली सब अपना जो कंपाउंडिंग जो करना है कर लो, उसके बाद में इफेक्टिवली बताओ कि इफ आई पुट $1 at time 0, what am I gonna take out after 1 year? That is the yield you're talking about. Effective annual yield. Is everybody comfortable till here? तो वही अगर डेली कंपाउंडिंग करेंगे that's that. That's fine, simple. 1 plus r by m whole to the power n into m. यहां 1 year है इसलिए 365 into 1 is 365. बोलो, क्लियर चलिए. एंड ना वो थोड़ा सा लैंग्वेज अपने दिमाग में बोलो कि अच्छा 1 becomes इतना इन इतना टाइम, तो इतना टाइम में कितना बनेगा. when you start learning this, when you start doing the sums in this way, it will become very easy. next day sums practice होगा, इसके बाद में भी आगे और है, we'll do more next day. You can take this down if you want quickly. We'll move to the next part. EAY I'm not yet done. Next reading में ना जरा EAY, BY बहुत सारे टाइप के, तो उसमें और डिटेल में कराऊंगा. अच्छा, कंटिन्यूस भी यहीं दे दिया है. ठीक है, यहीं पे दिया मेरे को एक और चीज कराना है यहाँ पे. See if this is okay till here. 365 days समझ में आया? अच्छा, what if I'll erase this part, right? मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है उधर. What if I want to increase the compounding frequency to infinity? मतलब एक हुआ कि अच्छा I'll give you interest on a semi-annual basis. फिर मैं बोला अच्छा ठीक है 3 months पे क्वार्टरली देता हूँ, मंथली देता हूँ. मंथली होता 1.01 to the power 12. मंथली if you want to put over here, बीच में डालना है तो मंथली would have been 1.01 to the power 12. And actually 1.01 to the power 12 is what $1 will become in 1 year. EAY निकालना है तो -1 करना पड़ेगा ना. प्रिंसिपल माइनस करोगे तब इंटरेस्ट पोर्शन बचेगा ना. 1 becomes 1.1255, so 12.55% is your EAY. 1 becomes 1.1255, so 12.55% is your EAY. 1 हटाया तो ये 12.1255 बचा ना. 1 तो प्रिंसिपल पार्ट था. अच्छा, वन मोर थिंग, यू माइट बी वेरी कंफर्टेबल यूजिंग क्लास 7-8 में वो 100 को लेकर के हम लोग सब सम करते थे कि लेट इट बी 100. वी आर ऑलवेज गोइंग टू वर्क विथ 1 नाउ. इट इज ईजियर, इट इज एक्चुअली ईजियर एंड फास्टर वर्किंग विथ 1 नाउ. कि 1 इन्वेस्ट किए तो कितना बना, बिकॉज 0.1255 इज इक्वल टू 12.55%. 0.1255 मतलब क्या?
12.55% ना, 12.55% मतलब क्या, 12.55 डिवाइड बाय 100 परसेंट. 12.55 means 0.1255. So we will not go for 12.5 because when we move into calculations and all, कोई भी सम में कुछ भी calculation होगा, if you have a 5%, you will always do the calculation using 0.05. कभी भी 5% को लेके नहीं करेंगे. आगे chapters में बताऊंगा वो सब चीज. So whenever you have any calculations, never use percentages in your formulas. Always use it in decimal format. So if you have a 12.55%, always use 0.1255 in the formula. If you have a 5%, always use 0.05 in the formula. Never use percentages in the formulas. Always convert it into decimal. जो भी plus, minus, into, divide, जो करना है करो. But सारा चीज decimal के साथ करने का, you will understand in the later chapters. 4% square या 4% into 4% अगर करना है, it is not equal to 16%. It is equal to 0.16%. 4% का 4% is 0.16%. It is not 16%. Because it is technically 0.04 into 0.04, which is equal to 0.0016, which is equal to 0.16%. That is why I'm telling you, for every single calculation, for every single formula, you'll always be using the decimal format and never the percentage format. Always be using the decimal format and never the percentage format in all your calculations. Everybody fine? So अपने हमेशा percentages ही decimals use करेंगे, percentages नहीं करेंगे. And we'll always use the value 1. 100 becomes इतना करने की जगह 1 becomes कितना, it's going to get easier. So get into that mode now. So 1 becomes 1.01 to the power 12 in 12 months. तो 1 हटा देंगे तो interest component आ जाएगा. वो calculations calculator में कैसे करना है बाद में देखेंगे हम लोग, right? उसके बाद में सपोज डेली करने के बाद में आई विल से आवरली करते हैं इंटू 24 इंटू 24. सपोज मिनट वाइज करते हैं इंटू 24 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 60. लेट्स डू इट सेकेंड वाइज अगेन इंटू 60 इंटू 60. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नाउ व्हेन से फॉर एग्जांपल फेसबुक में इन्वेस्ट कर रहे हो. फेसबुक इज अ कंपनी. फेसबुक का भी बिजनेस मॉडल है. जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आता है, फेसबुक रन्स बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, बेस्ड ऑन द डेटा दैट इट हैज ऑन यू. आज आप क्या सर्च करते हो, क्या देखते हो, उसके बेसिस पे वो एडवर्टाइजमेंट्स देता है आपको. मशीन लर्निंग. एनीवेज, सो फेसबुक बिजनेस मॉडल इज अ डिफरेंट थिंग, विल डिस्कस सम अदर डे. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट फेसबुक, इज इट गोइंग टू अर्न मनी ऑन अ मंथली बेसिस, डेली बेसिस की एनुअल बेसिस, ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस? 24/7 अवेलेबल है. जब भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, परचेज वट एवर यू वांट. फ्लिपकार्ट का बात कर लो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन मेक परचेजेस. सो इज फ्लिपकार्ट अर्निंग मनी? फ्लिपकार्ट का जब रिटर्न्स का बात करेंगे तो क्या फ्लिपकार्ट इज गोइंग टू बी अर्निंग मनी ऑन अ डेली बेसिस, मंथली बेसिस, एनुअल बेसिस, क्वार्टरली बेसिस? इट्स अर्निंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. एवरी सिंगल सेकंड someone or the other is purchasing and doing transactions. Everybody with me on this? Sure? So $1 becomes इतना in 1 year. ये तो फॉर्मूला देख चुके हो. 1 + 0.12 डिवाइड बाय 2 to the power 2, 1.06 स्क्वायर, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड ऑल. दिस फॉर्मूला इज फाइन. इन 1 ईयर एक बार 1 ले रहे हैं, राइट? इफ m टेंड्स टू इंफिनिटी, this tends to e to the power r, which is e to the power 0.12, which is equal to 1.1275. If m tends to infinity, इसका proof और नहीं होगा. Limit, continuity and all you might have heard of class 11 and 12. So when m is going to tend towards infinity, this equation, this value 1 plus r by m whole to the power m is going to tend towards e to the power r. अब e का value आप पूछेंगे, e is called a natural number. Just the way you've got pi. Pi का कोई pi का logic क्या है? Anybody knows? Pi is 22/7, right? But what is the significance of pi? Values infinity मतलब वो तो infinity 0.3333 वैसे भी चल सकता है. So what is the pi? You will never have a pattern. मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि 0.9874, 0.3.142876 जो भी आया, even after 100 digits or 500 digits, it will never repeat. It will never follow the same pattern. मतलब every single book, every single thing in the universe can be converted into pi because it has infinite possibilities. Pi never becomes, वो recurring वाला part नहीं आता है. आज 2.737373 मतलब for every 2 digits के बाद में recurring हो गया. Pi कभी recurring नहीं होता. That is the beauty of pi. So जैसे pi is a number, similarly you have something called a natural number.
E का वैल्यू इज 2.718. सो e to the power 0.12 इसका प्रूफ नहीं होगा, बट लाइक यू कैनॉट प्रूव द सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर एंड ऑल, सो वी कैनॉट डू दैट पार्ट. सो ऑल वी आर सेइंग इज कि 1 + r by m होल टू द पावर m. इफ m टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. m टेंड्स टू इन्फिनिटी कैसे हुआ? पहले उसको डेली किया, इंटू 24 करके आरली किया, इंटू 60 करके मंथली मिनट वाइज किया, इंटू 60 करके सेकेंड वाइज किया. सो व्हेन यू मेक दैट m infinite times compounding, continuously the money is making money. That is how businesses should be, right? So उस continuous वाला part में this value tends to e to the power r. ये calculator में you will be able to do that. Calculator में if you see the leftmost side fourth last button, you will see ln लिखा हुआ है calculator पे. check करिए, leftmost side fourth last button on the bottom, ln लिखा हुआ होगा. ln के ऊपर में देखो e to the power x लिखा हुआ है. Now जैसे आप लोग का साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में यू हैड द शिफ्ट बटन, राइट? बटन के ऊपर जो लिखा हुआ है यू प्रेस द बटन एंड यू यूज इट ऑन द बटन. अबव द बटन जो लिखा हुआ है छोटा सा, उसको यूज करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके बटन प्रेस करते थे. सिमिलरली इन योर फाइनेंशियल कैलकुलेटर यू हैव द सेकंड बटन टू डू दैट फॉर यू. यू हैव द सेकंड बटन टू डू दैट फॉर यू. सेकंड प्रेस करके अगर एलएन प्रेस करेंगे तो हो जाएगा. सो एक बार विथ मी ट्राई इट ऑन द कैलकुलेटर. प्रेस 0.12, press 0.12 on the calculator first, type 0.12 on the calculator first, and then press second ln, because अपने को e to the power x करना है, right? e to the power x is above ln. ln का बटन प्रेस करोगे तो ln होगा. ln क्या है बाद में आऊंगा. और ln के ऊपर वाला पार्ट अगर करना है तो second ln करना पड़ेगा. That is like a shift key on this calculator of yours. बोलो, second ln is going to give you e to the power 0.12. आंसर आया 1.127497, I guess. Right? So that is 1.1275. So 1 becomes 1.1275. So effective yield is equal to 12.75%. Effective yield is equal to 12.75%. इससे ज्यादा इफेक्टिव yield पॉसिबल नहीं है 12% को यूज करके, बिकॉज यू कैनॉट कंपाउंड इट मोर देन इनफाइनाइट टाइम्स. यू कैनॉट ब्रेक डाउन दी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मोर देन दैट. सेमी एनुअल था 12.36% हुआ, क्वार्टरली 12.55 आया. सो यू कीप ऑन इंक्रीजिंग इट. क्वार्टरली ये सही है क्या? सो मंथली विल बी आई डोंट नो 1.01 टू द पावर 12 करके देख लेना बाद में. बट अल्टीमेटली एज यू आर इंक्रीजिंग द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी योर अल्टीमेट वैल्यू विल इंक्रीज. बट इनफाइनाइट टाइम से ज्यादा तो कंपाउंडिंग नहीं पॉसिबल है. लास्ट तो वही कर सकते हो. सो इनफाइनाइट कंपाउंडिंग पे योर आंसर टर्न्स आउट टू बी 12.75%. दैट इज द मैक्सिमम इफेक्टिव यील्ड दैट यू कैन जनरेट. That is a maximum effective yield that you can generate using a 12% rate of return. बोलो, comfortable till here. इसको continuous rate बोलते हैं. अच्छा, RCC, continuously compounded. When you are continuously compounding a rate of return, it will give you the highest effective annual yield. It will give you the highest effective annual yield, obviously. e to the power 0.12 is going to give you 1.1275. So अगर अपने continuously compounding करते हैं, every moment, every single second, your $1 is going to become 1.1275. Every single moment, every single second, every single moment you are compounding, your value is going to be 1.1275. बोलो, clear or not? Everybody. Sure? समझ में आ रहा है? That is continuous rate. Continuous rate का calculations थोड़ा tedious होगा. We will work on this a little later. इस reading में I don't want to discuss this. ये एक या दो reading बाद में I want to discuss this in detail. वहाँ पर आएगा ये वाला part. So continuous compounding we'll do it in more detail over there. यहाँ तक is everybody comfortable? Yeah. इससे ज़्यादा भी नहीं दिया. Next chapter में detail में करेंगे. Everybody okay till here? We move to the next LOS. Yeah. Next LOS में let's move to the next LOS. So next LOS में they've given two very easy sums. Let me just get done with the sum. Quickly guys over here. So next one में question दिया हुआ है. John plans to invest $2,500 in an account. There is a question given. Everybody, there is a question given. John plans to invest $2,500. Guys. John plans to invest $2,500 in an account that will earn 8% per year with quarterly compounding. At the end of 2 years क्या होगा? ठीक है, ये वाला बाद में करते एक बार. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है बेकार सा. ठीक है, you see the examples later. Let me move on to the next section. Examples एक साथ बाद में करेंगे.
विल डू द एग्जांपल्स एंड सम्स लेटर. एक बार वापस आइए यहां पे. Alright, we'll complete the table a little later. एक बार ध्यान दीजिए, I'll give you time. Single sum. So ये वाला चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. So when you're looking at a single sum cash flow over here, time 0, time 4 years, let's say 1, 2, 3, 4. यहाँ का $100 है. I'm assuming again 10% rate for all calculations. So that will become 100 into 1.01 to the power 4. That is 146.41. That's fine. ये कर चुके हम लोग. If you invest $100 today, it will become 1.1 to the power 4 times over here. And if I have $100 over here, if this is your future value, how do you calculate the present value? Your present value is equal to future value by 1.1 1 plus r to the power n. This fine? Take this down quickly. इसमें थोड़ा बड़ा सारा बनाना पड़ेगा. There will be a lot of things to write over here. ये दोनों small होगा. Done. So this was very simple. ये तो कर चुके हम लोग. Single sum of money. So single sum of money है, उसका present value and future value you can easily calculate. So again, if you just pick up your calculator once very quickly, more than half the buttons. If you don't have your calculator, you can use your phone. If you don't have your calculator, you can use your phones. If you see, उसमें नीचे में अगर buttons देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 you can see your normal buttons are there. उसके ऊपर उसके राइट साइड में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज फाइन. दैट इज योर नॉर्मल कैलकुलेटर का बटन्स. इक्वल्स टू एंड ऑल. आई होप दैट इज फाइन. 3 के नीचे इफ यू सी लास्ट रो फोर्थ बटन प्लस माइनस बटन. 5 माइनस 7 करना है तो माइनस बटन यूज होगा. -5 को अगर -5 बताना है तो प्लस स्लैश माइनस वाला बटन यूज होगा. आई होप दैट इज फाइन. इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ नंबर टू नेगेटिव देन द प्लस स्लैश माइनस विल वर्क. 10 - 5 करना है तो 10 - 5. और अगर कोई 5 नंबर को इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू -5, यू वांट टू मेक 5 एज अ -5, इन दैट केस दैट प्लस स्लैश माइनस वर्क्स. बोलो फाइन. अच्छा, उसके बाद में 7, 8, 9 के ऊपर वाला जो बटन्स है ना, वो वाला एक बार देखते हैं. ब्रैकेट्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल. ब्रैकेट जैसे यूज करते हो वैसे करोगे. इफ यू वांट टू डू सम कैलकुलेशन इन द ब्रैकेट, बॉडमास रूल, यू अंडरस्टैंड. ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले होगा
नाउ अनलाइक साइंटिफिक कैलकुलेटर, ब्रैकेट्स डोंट शो ऑन द फाइनेंशियल कैलकुलेटर, तो वो रहेगा. You can open, you have to be get comfortable by to you know open 2-3 brackets and close 2-3 brackets at a time. वो मन में रहेगा आपके, वो दिखेगा नहीं आपको स्क्रीन पे. You cannot see the working on the screen like your scientific calculator, but the brackets are there and they are opening and closing even if you can't see them. जो y to the power x 9 के ऊपर जो बटन है ना, y to the power x, that is a power button. जो y to the power x वाला बटन है 9 के ऊपर, that is a power button. So if you want to do a 100 into 1.10 to the power 4, you will type 1.10 to the power 4 equals to, and you'll get 1.4641. Just try that. Everybody fine? And since you've just started using the calculator, it's possible आपका calculator में खाली 2 decimal places आ रहा है. It's possible that your calculator is showing only 2 decimal places. What you do is, second button देखो दिख रहा है ऊपर, second button, second row first one, second is shift. Second का मतलब shift ना, scientific calculator वाला. अच्छा, लास्ट रो में देखो डेसिमल पॉइंट है, उसके ऊपर फॉर्मेट लिखा हुआ है. सेकेंड फॉर्मेट करो, सो वी नीड टू चेंज सम फॉर्मेटिंग इन द कैलकुलेटर. सेकेंड फॉर्मेट करोगे, स्क्रीन पे डीईसी लिखा हुआ आएगा. स्क्रीन पे डीईसी लिखा हुआ आएगा. आई डोंट नो, ये ऐप वाला थोड़ा गड़बड़ रहता है. हाँ ठीक है, डीईसी लिखा आएगा, डेसिमल, डीसी स्टैंड्स फॉर डेसिमल. एंड उधर स्क्रीन पे इक्वल्स टू 2 दिख रहा होगा, डीसी इक्वल्स टू 2. उसमें 6 प्रेस करके एंटर कर दो. Enter is on the first line of your calculator. The button enter is on the first line of your calculator. 6 press करके enter कर दो. So now it becomes 6 decimal places. You can again press CC and you can get back to working with your calculator. Alright, बाकी there are a lot of details to be done with the calculator. On YouTube we've got one full calculator video. It's almost an hour 20 minutes, but every single functionality of the calculator is discussed. So watch that in order to be thorough. और बाकी मैं बीच बीच में you know in order to get you guys in the practice and all थोड़ा बहुत बताते रहूंगा. उसके ऊपर और 2-3 buttons भी देख लो. जो brackets and y to the power x वाला रो है ना, just look at the 3 buttons. देखो percentage square root पता है आप लोग को, percentage करना square root करना पता है. x square will square the number, that is also fine. 1 by x is basically going to give you the reciprocal of the number. So suppose I want to do 100 divided by 1.10 to the power 4. What I can do is, मेरे साथ साथ करिए, कैलकुलेटर पे टाइप 1.10 टू द पावर बटन, दैट इज y to the power x वाला बटन, 4 equals to, you will get 1.4641, राइट. रेसिप्रोकल बटन टाइप करो तो you'll get 1 by 1.10 to the power 4, 0.683. उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, दैट्स फाइन. रेसिप्रोकल, सो 1.10 to the power 4 का रेसिप्रोकल करना है, 1 डिवाइड बाई करना है, तो 1 by x वाला बटन प्रेस कर दो. So you'll get easily that value. Right, and start spending some time with calculator. Say for example, if I want to do 2 to the power, suppose मैं 8 to the power 1/3 करना है. So 8 to the power, bracket open, 1 divided by 3, bracket close. When you do bracket close, the screen is going to show you 0.33. When you do equals to, you will get the answer 2. 8 to the power 1/3, 8 to the power 1/3, that is 8 to the power, bracket open, 1 divided by 3, bracket close. When you do bracket close, bracket वाला पार्ट का आंसर स्क्रीन पे दिखेगा. So ये वाला पार्ट इवैल्यूएट होगा when you close the bracket. When you press equals to, आंसर 2 आ जाएगा. Or what you can do is 8 to the power 3 equals to मत प्रेस करना, 1 by x. When you press 3 and 1 by x, स्क्रीन पे 3 था तो 1 by x will give you 1/3. And when you press equals to, it will give you 2. So take a value. मैंने जानबूझ के 8 लिया because you know the answer should be 2. Take a 27, you need, you know the answer should be 3. So you know random numbers को लेकर के कुछ basic calculation करके देखिए, work it out and see whether the bracket is working, whether the divide and square root and how is it working. Like 8 to the power 3 का 1 by x कर रहे हैं तो it is not 24 का reciprocal नहीं हो रहा है. 8 to the power 3 अभी स्क्रीन पे 3 है. When you press the reciprocal button, it is not doing the reciprocal of 24. It is doing the reciprocal of what is available on the screen. The square button and the 1 by x button or the root button does whatever calculation on the button on the number on the screen. अगर ये evaluate करके इसका 1 by x करना था तो पहले equal to press करते फिर 1 by x करते. So 1 by x is doing the reciprocal of what is on the screen. Confusion है तो पूछना नहीं पड़ेगा ना. Confusion है तो पहले 8 to the power 3 1 by x करके आंसर निकाल के देखो 2 आ रहा है कि नहीं. आंसर 2 आ रहा है कि 1 by 24 आ रहा है.
I'm not saying that I'll not answer. I will answer every single query. Calculator video is taking care of every single thing on the calculator. But what I'm telling you is कि ये confusions होगा शुरू में, and इसके लिए आपको calculator लेना पड़ेगा, उस पर time spend करना पड़ेगा, एक normal सा random सा class 2 का BODMAS वाला sum बनाना पड़ेगा, and उसको अलग अलग तरीके से brackets use करके complicated सा करना पड़ेगा. You create 2-3 brackets वाला sum ना, this divided by this plus you create a sum where 5 plus 7 by 3 plus 2 square minus 1 by 5 इसको करके दिखाओ. मतलब यू क्रिएट अ सम, नॉर्मल कैलकुलेटर पे आंसर निकालो इसका, एंड फाइनेंशियल कैलकुलेटर को यूज करके ट्राई टू इवैल्यूएट वेदर यू गेटिंग द सेम आंसर और नॉट. प्रैक्टिस ऐसे ही होगा, हाथ ऐसे ही सेट होगा कैलकुलेटर पे. देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू स्टिक टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग. अल्टीमेटली बुक पेन लेकर के ही पढ़ाई और टाइम लेकर के ही पढ़ाई होगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई होगा. दैट कैन नॉट चेंज विद टेक्नोलॉजी, राइट? सो सर्टेन थिंग्स, सर्टेन बेसिक्स एंड ऑल विल बी लाइक दिस. बोलो, इज एवरीबडी कंफर्टेबल टिल हियर? सो ये सब अप्लाई करके देन योर क्लैरिटी विल इंक्रीज. सो यू हैव टू यूज द फंक्शंस, यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर इन दिस मैनर. तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा ना आराम से एकदम 68.3. इज एवरीबडी कंफर्टेबल टिल हियर? सो सिंगल कैश फ्लो, सिंगल सम ऑफ मनी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, यू गाइज आर कंफर्टेबल विद दैट नाउ, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, now when I'm talking about annuity, I'm talking about equal cash flows at regular interval. When I'm talking about annuity, I'm talking about equal cash flows at regular interval. Like EMI लोन पेमेंट्स वगैरह नहीं होता है, इंटरेस्ट दे रहे, EMI पे कर रहे हैं रेगुलर अमाउंट पर, रेगुलर बेसिस पर सेम अमाउंट दे रहे हैं. अच्छा, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. नॉर्मली व्हेन यू आर टेकिंग अ लोन, डू यू पे द इंटरेस्ट आज से ही, अगर आज लोन लिया, या फिर मंथ एंड से या ईयर एंड से देना चालू करते हैं? मंथ एंड या ईयर एंड से देना चालू करते हैं. सो ऑर्डिनरी एन्युइटी, ऑर्डिनरीली आपका कैश फ्लोज कैसा होना चाहिए? लेट्स से 100, 100, 100 and 100. Ordinarily, your cash flows should start at the end of the year. It is a 4-year annuity with regular amount of 100 at equal intervals. अगर ये 100 डिलीट कर देता हूं, it is no longer an annuity. Because first 2 cash flows are at regular intervals, but the third cash flow is after 2 years. So this is a regular annuity. And there is another kind of an annuity, annuity due. Annuity due is wherein the cash flows start at the beginning of the period. That is the only difference. And now you already understood, confusion नहीं होगा. Because normally कैसे होता है, ordinarily कैसे होता है, end of the term में payment करना पड़ता है, right? Ordinarily, normally you don't pay when you take a loan, you don't pay interest today itself. You start paying the interest after the year end. So normally ये होता है. So ये ordinary annuity हो गया. And annuity due जो टाइम से पहले ड्यू हो जाए, जो एकदम beginning of the period पे ड्यू हो जाए, that is all annuity due. Now we want to do all the calculations on this one. This is fine. Ordinary annuity and annuity due. Ordinary annuity ज़्यादा easily हो जाएगा. Ordinary annuity का present value मतलब क्या? Now if you guys remember, I was telling you $100 at different time periods का cash flow को neither can you compare nor can you do any addition, subtraction and all. मतलब अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इसका, मेरे को सारे कैश फ्लोज को सेम टाइम पे निकालना पड़ेगा, एंड उसके बाद आई कैन ऐड देम. आई कैन नॉट जस्ट सिंपली सम इट अप. सो द प्रेजेंट वैल्यू विल बी 100 by 1 plus r plus 100 by 1 plus r square plus 100 by 1 plus r cube r to the power 4. Your present value will be the summation of the present value of each individual term. 100 after 1 year is worth 100 by 1 plus r today. 100 after 2 years is worth 100 by 1 plus r square today. 100 after 3 years is worth 100 by 1 plus r cube today. And 100 after 4 years is worth 100 by r to the power 4 today. Bolo, comfortable? Everyone okay? ये जो equal amount at regular intervals होता है ना, we denote it as PMT. PMT stands for payment, regular amount का payment at regular intervals, at equal intervals. Regular payment at equal intervals. That is PMT. बोलो, everyone comfortable? So that is your PMT वाला part. So 100 को PMT बोल रहे हैं. Now, class 11-12 का formula एक बार remind करा रहा हूँ. You don't need to use it. You won't need to copy it. I will not even write it. अपनी एन्युइटी करके एक टॉपिक शायद ISC बोर्ड पीपल हैव एटलीस्ट डन इन क्लास 11 and 12. सेक्शन C में शायद होता था एन्युइटीज. एन्युइटीज का फॉर्मूला क्या होता था? इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स का वैल्यू अगर आज निकालना है,
इसी चीज का आंसर अगर निकालना है, दैट यूज टू बी 100 डिवाइडेड बाई आर ए बाई आई इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आर टू द पावर n. याद करो, a by I into 1 minus 1/1 plus r to the power n. That used to be the formula you used to use for calculation of annuity, where a stands for 100, I will be your rate of return, a by I into 1 minus 1/1 plus r to the power n. बोलो, correct? Everybody, annuity इस तरीके से निकालते थे. We don't need that right now. We don't need that. We won't use it. I'm just trying to tell you कि वो सेम चीज है, वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं हुआ अभी तक. ऑब्वियस सा बात है, ऐसे तो कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, इट विल बिकम वेरी टीडियस. कैलकुलेटर में इफ यू सी द थर्ड लाइन ऑन योर कैलकुलेटर, यू हैव दीज अलग अलग का बटन्स होगा एंड you'll have these functions n I by y, pv, pmt, fv. If you see the third line of your calculator, you have n I by y, pv, pmt, fv. fv समझ में आ गया फ्यूचर वैल्यू, pv समझ में आ गया प्रेजेंट वैल्यू, pmt समझ में आ गया इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स. दिस इज फाइन, ये हम लोग अभी देख चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एंड पीएमटी इज द इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स. n is not the number of years, it is a number of periods. I by y is not the per annum rate of interest, it is the yield per or interest per period. So अगर 6% per annum compounded semi-annually है and you have 4 years, n will be 8 and rate will be 6%. I by y is the rate per period. 12% semi-annual compounding है तो 6% per period, and कितने number of 6 months आएंगे वो n में जाएगा. So n is the number of periods and I by y is the rate per period. कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो डोंट अंडरस्टैंड. आई नो देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स एंड वील ऑल कनेक्ट, वील डू लॉट ऑफ सम्स ऑन दिस. अभी चालू किया है समझाना, सो डोंट पैनिक, डोंट वरी, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल गेट दिस मैथ्स से एंड कौन से दे हैव दिस यू नो लव फॉर मैथ्स, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट. सो इट विल गेट बेटर. मतलब वो कनेक्ट करोगे ना आराम से हो जाएगा, एंड सारा चीज इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके समझेंगे. सो यू नॉट हैव अ प्रॉब्लम एनीबडी, राइट. सो इसका कैलकुलेशन के लिए, एंड अपने लोग को ना कैलकुलेटर पे ये सब कैलकुलेट करना नहीं है. वी डोंट हैव टू डू द ग्राउंड वर्क, इट्स वेरी इरिटेटिंग, वी डोंट हैव टू डू दैट. कैलकुलेटर में हम लोग क्या करेंगे, पीएमटी 100 डालेंगे, 4 को n डालेंगे, एंड आई बाय वाई इसको डालेंगे, एंड पीवी कंप्यूट करेंगे. इट बी दैट सिंपल, विल गेट द आंसर. सो वी आर नॉट हियर टू डू बेसिक, मतलब कैलकुलेटर चला के कैलकुलेशंस नहीं करने का है. कैलकुलेटर में डेटा डालने का, आंसर निकालने का. इट्स सिंपल दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट. ट्राई करिए एक बार, कैलकुलेटर उठाइए. यू हैव इन द थर्ड रो एन आई बाय वाई पीवी पीएमटी एफवी फंक्शंस. एफवी वाला बटन के ऊपर अगर देखोगे, अबव द एफवी बटन यू विल सी क्लियर टीवीएम इज रिटन. ये जो एन आई बाय वाई पीवी पीएमटी एफवी फंक्शंस है, दे आर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शंस. एन आई बाय वाई पीवी पीएमटी एफवी फंक्शंस है, दे आर दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शंस, करेक्ट. अभी कैलकुलेटर, व्हेन यू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन योर कैलकुलेटर, योर डेटा डज नॉट गेट इरेज्ड फ्रॉम द कैलकुलेटर. जो भी डेटा वगैरह कैलकुलेट किया था ना, वो सारा का सारा भी कैलकुलेटर में सेव्ड रहता है, इट नेवर गेट्स इरेज्ड. सो हाउ डू यू रिमूव द डेटा? एफवी करना पड़ेगा, क्लियर टीवीएम करना होगा, एंड अबव एफवी वाला बटन है, तो हाउ डू यू डू दैट? सेकेंड एफवी. तो सेकेंड एफवी करके वी नीड टू फर्स्ट क्लियर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शंस. सो यू डू सेकेंड एफवी एंड एन आई बाय वाई पीवी पीएमटी एफवी में सब में 0 आ गया, ऑल डेटा इरेज्ड. सो पुराना कुछ भी डेटा होगा, सारा का सारा विल गेट इरेज्ड. सो एन आई बाय वाई पीवी पीएमटी एफवी, इफ यू वांट टू इरेज ऑल द डेटा इनसाइड, यू डू सेकेंड एफवी. सेकेंड क्यों? क्योंकि एफवी के अबव वाला पार्ट यूज करना है, दैट इज क्लियर टीवीएम. सो दैट क्लियर्स योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी बटन्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शंस. बोलो, एवरीबडी कंफर्टेबल टिल हियर? अच्छा, अभी उसमें कैसे डेटा एंटर करोगे? लेट्स से आई विल स्टार्ट विद पीएमटी. मेरे को जो दिखेगा उससे स्टार्ट करूंगा. 100 प्रेस करो, टाइप 100 ऑन योर कैलकुलेटर, एंड देन यू प्रेस पीएमटी. द मोमेंट यू प्रेस पीएमटी बटन ऑन योर स्क्रीन, यू विल सी पीएमटी इक्वल्स टू 100. इक्वल्स टू आना मतलब वो डेटा सेव हुआ है. When there is an equal to sign on your calculator, only then it means that the data has been stored. उसके बाद में you press 4, then you press n. बार बार C करने का जरूरत नहीं है, बार बार क्लियर वियर कुछ नहीं करना पड़ेगा. 4 n, then you press 10 and I by y, and then compute PV. compute button देखो, the first button of your calculator is compute CPT, that's compute. बोलो clear? compute PV बताओ कितना है? 316.98. So if you do 100 by 1.1, 100 by 1.1 square, 100 by 1.1 cube, 100 by 1.1 to the power 4, your answer will be 316.98.
सॉरी कुछ गलत आ रहा है, किसी का कुछ और आ रहा है, हाँ माइनस वाला साइन, सो ठीक है माइनस आ रहा है उसको छोड़ो एक बार, माइनस 316.98 आ रहा है. द आंसर, द प्रेजेंट वैल्यू इज 316.98 हियर. नाउ 316.98 माइनस में क्यों आ रहा है? ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे तो पहले ही बता देता हूं. अगर मैं बैंक में 316.98 डालूंगा, देन आई विल गेट 100 100 100 100. 316.98 विल बी एन आउटफ्लो, विल बी अ नेगेटिव कैश फ्लो फॉर यू. पैसा जाएगा तो उसको नेगेटिव डिनोट कर रहे हैं, तभी तो 100 100 100 आएगा 4 बार. करेक्ट? अच्छा, अभी सपोज आई वुड हैव टेकन अ लोन ऑफ 316.98, सो 316.98 पॉजिटिव आना चाहिए था, बट देन 100 100 100 देना पड़ता मेरे को. तो 100 को नेगेटिव डालेंगे तो आंसर 316.98 पॉजिटिव आएगा, एंड 100 को पॉजिटिव डालेंगे तो आंसर 316.98 नेगेटिव आएगा. एंड यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द प्लस एंड द माइनस. व्हाट यू नीड टू बॉदर अबाउट इज that all the outflows should be of the same sign and all the inflows should be of the opposite sign. Because देखो, मेरे लिए अगर 316.98 अगर आउटफ्लो है तो बैंक के लिए यही कैश फ्लो इनफ्लो हो गया. इफ आई एम टेकिंग पुटिंग 316.98 इन द बैंक, वो नेगेटिव कैश फ्लो है, उसके बदले में आपको 100 100 100 फ्यूचर में मिलेगा. सो 100 becomes a positive cash flow, 316.98 becomes the negative cash flow. Correct? So 316.98 is a negative cash flow, but that is positive from the bank. बैंक को मिला. 100 जो मेरे लिए पॉजिटिव कैश फ्लो है वो बैंक के लिए नेगेटिव कैश फ्लो हो गया. सो एक बार के लिए इसमें नहीं जाते, बट आई गेस यू अंडरस्टूड दैट कैश फ्लोज इन केस ऑफ कैलकुलेटर, एंड हर चीज का टू वे इफेक्ट होना चाहिए. देयर इज नो चैरिटी गोइंग ऑन. सो इफ यू आर पुटिंग इन समथिंग यू विल गेट समथिंग, एंड इफ यू आर गेटिंग समथिंग राइट नाउ यू विल हैव टू गिव बैक समथिंग. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग रेट्स एंड ऑल, इट इज गोइंग टू हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन. इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में पैसा आएगा, आज पैसा लोगे तो फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा. So that is why your inflows and outflows are of the opposite sign, and that's the reason why calculator पे you're getting the answer 316.98 negative. आगे और बताऊंगा इसके ऊपर. This is fine, 316.98 everybody. तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया अपना. अच्छा, अब इसी चीज का अगर मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालना है, now future value would mean ये 100 को यहां, ये 100 को यहां, ये 100 को यहां, फ्यूचर वैल्यू इज अ वैल्यू वही है, एंड उसके बाद ऐड कर पाओगे. 100 into 1 plus r to the power 3 होगा. That is why I'm telling you, timeline बनाना is very important, because then you will not make these kind of errors. 1 पे अगर कैश फ्लो उसको 4 पे लेके जाना है तो 1 2 3 times कंपाउंडिंग होगा ना. बोलो फॉलोइंग. So I need to get all the cash flows to time 4. तो 100 into 1 plus r cube plus 100 into 1 plus r square plus 100 into 1 plus r plus 100 today's 100 only, उसको 1 plus r नहीं करने का. 4 years पे जो 100 है वो 100 ही है, उसको कुछ नहीं करने का. बोलो एवरीबडी कंफर्टेबल और नॉट? दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू. ऑब्वियस सा बात है, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूट एफवी करो कैलकुलेटर पे. कितना है आंसर? कंप्यूट एफवी बोलो. 464.10. अगर आपने क्लियर वर्क कर दिया था तब नहीं आएगा ऑब्वियसली. आई डिड नॉट आस्क यू टू इरेज द डेटा. इफ यू इरेज द डेटा यू विल हैव टू अगेन पुट 400 10, देन यू विल बी एबल टू कंप्यूट एफवी. कैलकुलेटर ऑफ ऑन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपने मेरे ये कराने के बाद में इफ आफ्टर दिस यू डिड सेकंड एफवी, देन यू विल अगेन हैव टू पुट इन द डेटा ना, तब तो आपने डिलीट कर दिया पूरा डेटा. So if you've done second FV after this, you'll have to again re-enter the data and then calculate FV. Otherwise, you could have just done a compute FV and your answer is turning out to be 464 point. बोल दो 10, ठीक है. 464.10, that is your future value. Is everybody comfortable till here? Everyone 100% sure? देख लो एक बार please. Problem हो रहा है कोई को? कैलकुलेटर के लिए अगेन यूल हैव टू वॉच द कैलकुलेटर वीडियो, विल नॉट वर्क जस्ट विद द क्लास. हम लोग क्या किए? 4n था, i by y इंसर्टेड था 10 एंड pmt 100 था, एंड कंप्यूट बटन एंड देन fv बटन. दैट्स ऑल वी आर डूइंग. बोलो इज एवरीवन कंफर्टेबल? फ्यूचर वैल्यू भी नेगेटिव में आएगा. अगर 100 100 100 डाल रहे हैं, सॉरी 100 100 आज ले रहे हैं, सपोज आई एम टेकिंग 100 एवरी 4 years, एवरी 1 year for 4 years, तो 4th ईयर पे देना पड़ेगा कि मिलेगा 464? देना पड़ेगा ना. एंड अगर ये 100 नेगेटिव होता, हैड आई बीन डिपॉजिटिंग 100 100 100 इनटू माय रिटायरमेंट अकाउंट सपोज, सो आई वुड हैव बीन रिसीविंग 464 एट द एंड.
So positive negative has to be opposite ना. Inflows and outflows has to be of the opposite sign. बोलो any problem यहाँ तक? बताओ, I'll repeat it. बोलो 464 क्या हुआ? Present value is the value of these cash flows at time 0. Future value is the value of these cash flows at time 4, that is maturity, future में. तो इसका वैल्यू यहाँ पे लेके जाओगे तो 100 into 1 plus r cube, 100 into 1 plus r square, 100 into 1 plus r and 100. That is how you'll get the future value. And इसको कैलकुलेटर पे करने के लिए compute FV बस, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आपका N4 I/10 and 100 PMT डाला हुआ है कैलसी में ऑलरेडी. So your FV is, you just need to do a compute FV and you'll get your answer. बोलो, is everybody comfortable? बोलो, everyone good till here? Quickly take this down and फिर next part annuity due चालू करेंगे. Quickly take this down. Annuity due will be a long one. Quickly take this. दोनों में 4 ही होगा ना, n तो 4 ही है, 4 ही होगा ना. नंबर ऑफ इयर्स इज 4, PMT is 100 and the discount rate is 10%. You compute PV, you compute FV. You don't have to enter the same data twice. नहीं आ रहा तो मैं अलग से चेक कर दूंगा. इट शुड बी 464.10. यू माइट हैव डन सम एरर, आई विल चेक. जिन लोगों का नहीं आ रहा या तो फिर एक बार वापस सेकंड FV करो एंड तीनों डेटा वापस डाल के कंप्यूट FV ट्राई करो. Do second FV to clear work, again reinsert the data and again calculate FV. Quickly guys, copy this quickly. What is it giving you? I'll tell you. Alright guys, एक और क्वेश्चन है. कैलकुलेटर में इफ यू एंटर 100, 4 and 10%, यू कंप्यूट PV, तो PV का आंसर आ गया. उसके बाद में कंप्यूट FV कर रहे हैं तो कोई लोग का -4 या 0 या वैसा कुछ आ रहा है. उसमें बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज इन द कैलकुलेटर इज अज्यूमिंग you are putting 316 over here, you are getting 100 over here, and अब बताओ future value क्या है. So if you don't want to re-enter all the data, you put 0 PV, you press 0 as PV and then you compute FV. समझ में आया क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आपने compute PV किया तो आपका -316 आ गया. अब आप जब compute FV करने जा रहे हो तो कैलकुलेटर को लग रहा है PV में 316 है माइनस, प्लस 100 है, और ये यहाँ का FV अब क्रिएट कर रहा है. So calculator is giving you not this answer. Calculator is doing -316 into 1.10 to the power 4 also. इसमें ऐड कर दे रहा है वो. समझ रहे हो? You did a compute PV and then when you do compute FV, तो PV में भी -316 स्टोर हो गया ना. तो कैलकुलेटर जब कैलकुलेट कर रहा है तो वो इसके साथ साथ -316 into 1.104 to the power 4 also it is taking into consideration. बोलो following or not? Everyone. So ये सब दिमाग लगाओ. Good. So इसका मतलब either you erase the whole thing second FV करके and then put the data and again calculate FV, और 0 PV कर दो तो PV overwrite हो गया. You can always overwrite values in the calculator. You can always overwrite the values in the calculator. तो 0 प्रेस करके PV प्रेस करो तो 0 overwrite हो गया PV में and then you compute FV. बोलो clear? Alright guys, quickly over here. ध्यान दो please. यहाँ पर स्टार लिख के you'll not be able to fit everything over here because I'll have to write like इसका 3-4 times of data I'll have to give you. So स्टार मार्क करके नीचे अलग से लिख लीजिए, टेबल में फिट नहीं होगा. Now when you're looking at an annuity due, be very attentive over here, very interesting. Annuity due का अगर अपने बात करते हैं, I'll just put a star नीचे में and we'll work on this. When you're looking at an annuity due, present value of annuity due क्या होना चाहिए?
100 आज का 100 इज आज का 100 ओनली, प्लस 100 by 1 plus r प्लस 100 by 1 plus r square प्लस 100 by 1 plus r cube, 100 by 1 plus r square cube. That is the present value. Simple. ये अभी भी 4 year annuity है. Annuity due मतलब the payment will be made at the beginning of the year. But चारों साल के लिए payment at the beginning of year हुआ है ना. You can't call it 3 year annuity. The last payment received is at the end of year 3 or beginning of year 4. Agreed. It is a 4 year annuity जहां पर every year के लिए आपको beginning of the year में payment मिल गया है. It is a 4 year annuity. इस annuity का value ये है, समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, बिना डूइंग एनी कैलकुलेशन और कैलकुलेटिंग एनी आंसर, ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा कि एन्युटी ड्यू का? ऑर्डिनरी एन्युटी वाज हियर लाइक दिस. एन्युटी ड्यू का आंसर ज्यादा होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कि ऑर्डिनरी एन्युटी का? एन्युटी ड्यू का. ऑर्डिनरी एन्युटी के कंपैरिजन में ये एक एक्स्ट्रा 100 जो है वो आपको जल्दी मिल रहा है. बाकी तीनों तो सेम है, ये 100 को यहां डाल दो. You can treat it like that. So 100 after 4 years is worth 100 after 4 years is worth way less than 100 today, right? So 4 years के बाद का 100 को यहाँ shift करेंगे. Don't you think the value should increase? Or even other ways, if you want to look in another way, you're shifting all the cash flows one term ahead. हर एक cash flow एक एक बार कमती डिस्काउंट हो रहा है. ये cash flow 1 plus R था, ये अभी इधर शिफ्ट हो गया, beginning of the year शिफ्ट हो गया, तो it's not getting discounted. This one was getting discounted by 2 years, but इसको यहाँ shift कर दिया. It's getting discounted only one. Every single cash flow has been shifted 1 period ahead. So present value ज़्यादा होना चाहिए ना, और annuity due का, because all the cash flows are being received at a earlier date. बोलो correct, yes or no? Annuity due का present value should be higher because you're receiving all the cash flows जल्दी. पैसा जल्दी मिलना is good और देरी से मिलना is good. जल्दी मिलना is good. बोलो, making sense everybody? So you're getting the cash flows, all the cash flows earlier annuity due के केस में. So ये तो mathematical तरीका हो गया करने का. उसके अलावा there are 3 more methods. We'll work on that right now. Second method could be, एक और तरीका हो सकता है, what if I calculate the PV of these 3 and I add this 100 अलग से? ये भी वर्क करना चाहिए, कर सकते हैं ना ऐसे. ये तीनों 100s का PV का कैलकुलेशन अभी कर लिए एंड 100 अलग से ऐड कर दिए. सो हाउ विल आई डू? n equals to 3 PMT is the answer. n equals to 3 यूज करेंगे because there are only 3 cash flows over here. Try to understand. ये 3 cash flow का PV निकालना है. I'm assuming it's like a 3 year annuity. Assuming it is not a 3 year annuity, it is a 4 year annuity due. Just for the sake of calculations मैं बोल रहा हूँ कि एक बार assume करते हैं कि 3 cash flows है, उसका present value अलग से ले लेते हैं. n equals to 3 PMT 100 I by 10% compute PV. ये तो पहले वाला जैसा सम हो गया जो हम लोग कर रहे थे नॉर्मल एन्युटी का. उसके हिसाब से ये तीनों का पीवी यहां आ जाएगा. अलग से 100 ऐड कर दो. 100 टुडे इज 100 टुडे ओनली. अब आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, डू दिस पार्ट, नेक्स्ट आई विल गेट टू दैट. तीनों 100 का प्रेजेंट वैल्यू प्लस 100 अलग से ऐड कर दो. आंसर बताइए. दिस वाज 248.69. सो प्लस 100 करेंगे तो 348.69 हो जाएगा. सो दिस इज 248.69 इज द पीवी ऑफ दीज कैश फ्लोज. That is 248. So total value is 348.69. And देखो लास्ट क्वेश्चन का वो 319 कुछ आया था, उससे बड़ा है ये. लास्ट वाला प्रेजेंट वैल्यू से बड़ा है ये. बोलो फॉलोइंग. 316.98 था, सॉरी. It's bigger than that. Obviously, you're getting all the hundreds a little one term earlier. बोलो यहाँ तक ठीक है सब कोई? So that is 348.69. मैं हर एक ये वाला भी घर पे ट्राई करना, ब्रैकेट्स यूज करके ट्राई करना ना, निकालना 348.69 इसको यूज करके. कैलकुलेटर भी you'll have to practice for some time in the beginning now. But this part is okay, right? Everyone? अच्छा. Now in the second bit, एक और तरीका यूज कर सकते थे. ये मेथड कॉपी हो गया? अच्छा, I'll do it over here in case someone has not copied. Suppose third method में what we do is,
लेट्स से मैं ये पूरा का पूरा वैल्यू का पीवी निकालूंगा. नाउ अंडरस्टैंड, जब अपने टाइम 1 2 3 4 पे कैश फ्लोज था, इन चारों का पीवी निकालते थे, वो यहां पे आता था. अग्रीड? कैश फ्लोज जब टाइम 1 2 3 4 पे था, कैश फ्लोज जब टाइम 1 2 3 4 पे था, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कहां आ रहा था? टाइम 0 पे आ रहा था, राइट? एवरीवन, नाउ आई हैव द कैश फ्लो 0 1 2 3 पे. इफ आई टेक द प्रेजेंट वैल्यू, इट शुड कम एट टाइम -1. टेक्निकली हिसाब से -1 वाले टाइम पीरियड पे आएगा ना उसका वैल्यू, बट अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, वो टाइम 0 पे निकालना है, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज इन द थर्ड मेथड, sorry, I'll erase this bit. I think you're done. थर्ड मेथड में अपने क्या करेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू अपने यहां निकालेंगे एंड इसको यहां लेके जाने के लिए इंटू 1 + r टाइम्स कर देंगे. दैट शुड बी फाइन. We take all the hundreds का present value over here and we multiply by 1 + r and get the value at time 0. इन सबका present value अगर मेथड नॉर्मल मेथड फॉलो करेंगे तो -1 पे आएगा ना. When you were doing the last sum, 1 2 3 4 पे कैश फ्लो था, उसका वैल्यू 0 पे आया. अब आप जस्ट बिकॉज कैलकुलेटर को सपना थोड़ी आएगा कि 0 से 100 आ रहा है. So how would the calculator know? तो कैलकुलेटर पे 100 100 100 when you are starting from 0 1 2 3, उसका present value will be at time -1. उसका present value will be at time -1. सो उसको अपने को 0 पे लेके जाना है, तो उसको वो 10% ऐड करना पड़ेगा. आंसर सेम आएगा, देख लीजिए. सो व्हाट वी डू इज n = 4, PMT 100, I/Y 10%, कंप्यूट PV, आंसर बताओ, एंड देन इनटू 1.10 शुड गिव यू 348.69. आएगा ही आएगा. PV बताओ कितना आ रहा है? 31. अच्छा वो तो सेम ही था, सॉरी, 316.98, करेक्ट. 316.98 इज द वैल्यू ऑफ दीज हंड्रेड्स एट टाइम -1. उसको यहां पे 0 पे लेके जाने के लिए 10% कंपाउंड करना होगा. दैट विल गिव इट 348.69. करके देख लीजिए, आ जाएगा. सर ये खाली वो 100 को ऐड करने का झंझट को हटाने के लिए देयर आर, आई एम गिविंग यू 3 methods 4 methods टू डू इट. आई विल गिव यू वन मोर मेथड. आंसर सेम आ रहा है, मल्टीपल तरीका है. यू शुड बी कंफर्टेबल विथ ऑल. या तो ये 3 का पीवी यहां लेके 100 ऐड कर लो, या ये चारों का पीवी यहां लेके उसको कंपाउंड कर लो, एक ही बात है. टाइमलाइन बना के समझिए, अंडरस्टैंड थ्रू द टाइमलाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या तो ये 300 का पीवी ले लो और प्लस 100 कर लो, या ये चारों का पीवी यहां ले लो और उसको कंपाउंड कर दो. बोलो, फॉलोइंग यस और नो? कंफर्टेबल? कॉपी कर लीजिए यहां पर, फिर नेक्स्ट पार्ट में जा रहा हूं. This is the third method we used. Done? All right. Now, calculator has got one more method. कैलकुलेटर को, अगर मैं कैलकुलेटर को ये बता पाऊं कि देखो सारा जो कैश फ्लोज है ना वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे है, तुम उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके मेरे को दे दो. व्हाट इफ देयर इज अ वे इन विच आई कैन टेल द कैलकुलेटर दैट ऑल द कैश फ्लोज आर हैपनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. देन मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अलग से 100 ऐड करो, इसको डिस्काउंट करो +100, या इसको यहाँ डिस्काउंट करो फिर कंपाउंड करो. आई डोंट हैव टू डू सो मच ऑफ झमेला. If I could just tell the calculator that all the cash flows are happening at the beginning of the period, correct? अभी PMT बटन के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, above PMT button it's written BGN. PMT बटन के ऊपर it's written BGN and first row में enter है, उसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, set. So what we can do is
second PMT, what I want to do is I want to set the beginning mode. So beginning mode, I want to set the beginning mode. So I have to do second PMT, second enter. Second PMT is BGN. Second enter is set. Now just do that. Second PMT, second enter set करके देखो. Now if you will observe on your calculator screen, कैलकुलेटर का जो स्क्रीन वाला पार्ट है उसमें टॉप राइट साइड में एक छोटा सा BGN लिखा हुआ आ जा रहा होगा स्क्रीन पे. द मोमेंट यू डन सेकंड PMT, सेकंड एंटर. करेक्ट. स्विच ऑफ योर कैलकुलेटर एंड स्विच इट ऑन. देखो गया कि नहीं? नहीं गया. इट्स स्टिल देयर. अच्छा, लेट्स डू द सम फर्स्ट. So let's say now we will take n equals to 4, I by y equals to 10, PMT equals to 100, compute PV. 348.69 आंसर आ जाएगा. मतलब यहां पर I have set the beginning mode on the calculator and मेरे को कैलकुलेटर को अलग से बताने का जरूरत नहीं पड़ रहा है. मेरे को अलग से कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है because the calculator knows that you're supposed to be following the beginning mode. The calculator knows that you're supposed to be following the beginning mode. Bolo, correct till here? Everyone? So you're supposed to be following the BGN mode. You're supposed to be assuming that the cash flows are happening at the beginning of the period. तो calculator को जब पता है तो अपने आप ही कर देगा calculation. आपको कोई problem नहीं होना चाहिए. बोलो, clear? अच्छा, तो एक काम करेंगे आप लोग. सबसे पहले मेथड ये 4 है, इसके पहले 2 और 3 था. 2 और 3 में यूज मल्टीपल कलर्स, पेन एंड ऑल दैट, इट इज वेरी इजी टू स्ट्राइक एंड रिमेंबर. उसमें एंड मोड लिख दो अब जा करके, क्योंकि उसमें हम नॉर्मल मोड यूज किए थे ना अपने मेथड 2 एंड मेथड 3 में. वी यूज द नॉर्मल एंडिंग मोड ओनली. एंड मोड मतलब एंड ऑफ द ईयर कैश फ्लोज. जो मेथड 2 एंड 3 इसके पहले किए थे वो तो एंडिंग मोड पे किए थे, नॉर्मल मोड पे किए थे. सो उस पे एंड मोड लिख दो. सो यू नो दैट दोस टू मेथड्स आर यूजिंग द एंडिंग मोड. Now you would obviously, I guess, prefer the method 4. Method 4 is a very bad method. क्यों? क्योंकि अगर आपने suppose method 4 use करके एक sum कर लिया and उसके बाद में you forget to remove the BGN mode from the calculator, your entire exam paper will be done on a BGN mode. And normally BGN mode पे नहीं होता है calculations. If you forget to remove the BGN mode from the calculator, even if you switch off and switch on the calculator, your BGN mode does not get removed. So it is never advisable to use method 4. बोलो, समझ में आया क्यों अपने मेथड 4 यूज नहीं करना चाहिए? एंड मेथड 2 एंड 3 तो सिंपल है यार. ये 3 का पीवी लेके 100 जोड़ा या ये चारों का पीवी यहां ला करके उसको कंपाउंड किया. इट इज वेरी विजिबल. द मोमेंट यू ड्रॉ टाइम लाइन इट इज एब्सोल्युटली अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन. बोलो, समझ में आ रहा है? मेथड 4 में एक नोट लिखिए. डू नॉट यूज दिस मेथड एंड इफ यू डू नॉट फॉरगेट टू रिमूव द BGN मोड. Do not use this method, and if you do not forget to remove the BGN mode. Do not use this method, and if you do not forget to remove the BGN mode. BGN मोड सेट करने का तरीका भी सेम है, हटाने का तरीका भी सेम है. नाउ ट्राई सेकंड PMT, सेकंड एंटर अगेन ऑन द कैलकुलेटर. सेकंड PMT करोगे तो एंड दिखेगा स्क्रीन पे. सेकंड एंटर करोगे तो यू हैव सेट द एंडिंग मोड. एंड देखो BGN चला गया कैलकुलेटर से. ऑलवेज कंफर्म BGN वो छोटा सा लिखा हुआ था स्क्रीन पे, हैज इट डिसअपीयर्ड और नॉट. सो दैट इज गॉन नाउ. सो सेकंड PMT, सेकंड एंटर इज यूर रिमूविंग द BGN मोड. बोलो, इज एवरीबडी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल टिल हियर? So there are 4 methods. 1 तो न्यूमेरिकल टाइप का हो गया. एंड देखो ना, ये वाला भी वर्क कर रहा है. अगर आपको याद होगा जो अपने एंडिंग मोड का सम था उसमें 100 by 1 plus r by 1 plus r square by 1 plus r cube by 1 plus r to the power 4 था. अगर एंडिंग मोड वाला आंसर में 1 plus r मल्टीप्लाई कर देंगे तो डोंट यू थिंक यही आएगा? एंडिंग मोड में 100 by 1 plus r square cube to the power 4 था. If you multiply 1 plus r to that equation, don't you see you will get this 100 1 plus r square and cube. एंडिंग मोड में पावर में 1 2 3 4 था. पूरा इक्वेशन को 1 plus r से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में 0 1 2 3 नहीं हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन. यू कैलकुलेटेड द PV यूजिंग एन ऑर्डिनरी एन्युटी एंड देन यू हैव डन इनटू 1 plus r. वही तो किए हो.
ये सब चीज ना, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स. यू आर सपोज टू सिट विद द बुक, सिट विद नंबर्स, सी एंड स्ट्राइक आउट दीज डिफरेंसेस, दीज स्मॉल थिंग्स. अब कहाँ से क्या नंबर कैसे कैसे आ रहे हैं ना, सब पता होना चाहिए अच्छे से. उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना पड़ेगा. एंड अभी ये डिफिकल्ट लग रहा होगा देख करके, अ मंथ लेटर और समथिंग, वंस यू आर डूइंग द टॉपिक्स, ये सब ऐसे ABCD की तरह करोगे, बिकॉज दीज विल बी द वेरी बेसिक्स ऑफ फाइनेंस. सो विल नॉट बी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस. सो रिमूव द मेंटल ब्लॉक कि मेरे से नहीं हो रहा है. लॉट ऑफ फेसेस इज लाइक क्या हो रहा है, कहाँ ऊपर से जा रहा है, इतना कुछ हो गया एक दिन में. इट्स नॉट लाइक दैट. बोलो, इज एवरीबडी कंफर्टेबल टिल दिस पार्ट? ओके, सो दिस वाज योर प्रेजेंट वैल्यू वाला पार्ट. अभी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू के लिए? Now tell me, your future value, your FV will be calculated at time 3 ki time 4? Time 4. It is a 4-year annuity. Your future value will be calculated as on this date. Annuity तो 4 years का ही है. अपने बोले थे कि अपने कैश फ्लोस ईयर के बिगिनिंग पे रखेंगे, बट है तो 4 years का annuity. So when you are calculating the future value, it will be at the maturity time, that is 4 years पे. So यहां पर अगर FV देखेंगे तो 100 इंटू if you compare this with the future value formula of your normal annuity, नॉर्मल एन्युटी का आंसर यहां आया था, ये चारों का PV, ये चारों का FV अगर याद होगा तो 1 2 3 4 पे कैश फ्लो था, एंड इन चारों का FV यहीं पे निकाले थे अपने. यहां पर जो FV, सो यू यूज एंडिंग मोड, कंप्यूट FV एंड देन इनटू 1 प्लस R इज इक्वल टू आंसर. कंप्यूट FV ओवर हियर एंड डू 1 प्लस R, आंसर आ जाएगा. एंड अगर मन है तो FV लास्ट क्वेश्चन का, दैट इज नॉर्मल एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, और इसको कंपेयर करो. लास्ट वाला का जो था ना, वो 100 इंटू 1 प्लस R क्यूब स्क्वायर 1 एंड 100 अलग से वैसे ही था. सोचो, ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फ्यूचर वैल्यू था, दैट वाज दीज हंड्रेड्स, राइट? सो 100 1 प्लस R क्यूब स्क्वायर 1 एंड 100. यू मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज विद 1 प्लस R, आपको यही इक्वेशन मिलेगा. सो यू कैन कंपेयर दिस फॉर्मेट विद द पुराना वाला. और इन चारों का FV यहां निकल के आ रहा है, मेरे को यहां चाहिए, तो आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1.10, व्हिच मेक सेंस. 1 प्लस R से मल्टीप्लाई करना, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू. और BGN मोड यूज करना तो कर लो, बाकी प्लीज करना मत, बिकॉज BGN मोड में क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से 14 क्वेश्चंस कौन से आते हैं. यू गेट 14 क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स. अगर BGN मोड दिया, इट इज नॉट लाइक अ बिग डील और अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दे विल गिव यू 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 14, राइट? और वो भी आने का कोई गारंटी नहीं है, तो उसके लिए पूरा बाकी पेपर स्पॉइल क्यों करने का? BGN मोड मत याद करिए. एंड एनीवेज ये 3 का PV लेना, इसको ऐड करना, ये सारा चीज में यू हैव टू गेट कंफर्टेबल, बिकॉज you will not get 100 का calculations when you do start your sums. You will get currencies anywhere and everywhere. You will have to be comfortable with the time value of money functions. Timeline बनाओ, number plot करो और बिंदास सम करो, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. बोलो, got it? Take this part down. कितना वैल्यू आ रहा है? 510.51 should be right, because 464 into 464.1 था ना, so 464.1 into 1.10, 464 में 46 ऐड करो, आएगा वही आएगा. क्योंकि अपना जो नॉर्मल एन्युटी को यूज किए थे, ये चारों का जो वैल्यू है वो यहां पे देगा ना, नॉर्मल FV. ये चारों का वैल्यू जो नॉर्मल FV देगा वो यहां देगा ना, बट मेरे को FV जो कैलकुलेट करना है वो यहां कैलकुलेट करना है. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इनटू 1.10. व्हेन आई एम यूजिंग द एंडिंग मोड, आई एम यूजिंग द एंडिंग मोड, देन एंडिंग मोड यूज कर रहे हो तो ये चारों FV, ये चारों कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू यहां दे रहे हैं ना आपको एंडिंग मोड, तो ये चारों का भी यही देगा. कैलकुलेटर को थोड़ी पता है, अपने तो एंडिंग मोड यूज कर रहे हैं, सो उसको यहां लेके जाने के लिए you'll have to do it into 1.10. बोलो, कंफर्टेबल और नॉट? एवरीबडी एब्सोल्युटली फाइन टिल हियर? बिगिनिंग मोड में N4 ही होगा,
बिगिनिंग मोड में कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली नोज, बिगिनिंग मोड में सेम चीज होगा. इफ यू वांट बिगिनिंग मोड भी लिखना तो लिख लो, इसको इरेज. बीजीएन मोड यूज करके कंप्यूट एफई, आंसर यही है. वैल्यू सेम होंगे, n इक्वल्स टू 4 PMT 100, बिकॉज ये n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट सेम अमाउंट इज हैपनिंग, वो n है. बोलो. Everyone absolutely fine till here? Taken down this bit, beginning mode भी ले लिया. Alright, last two करते हैं, unequal cash flows and perpetuity. Alright, perpetuity is just one small formula, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. देखो इधर सब कोई, everyone, perpetuity and unequal cash flows. Unequal cash flows पहले करते हैं, बहुत सिंपल है. Be a little attentive guys, please. I know you're tired, but यहाँ पे guys over here. Let's say unequal cash flows में suppose I'm making an investment of 50. I'm going to get 10, 40, 20, 35. Suppose आप एक फैक्ट्री खरीद रहे हैं, you're putting an investment of 50 today and it is going to give you 10, 40, 20 and 35 in the future. These are your future cash flows. ठीक है, सिंपल. अच्छा, अभी इसका अगर अपने को आंसर निकालना है, इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, लेट मी कॉल इट अ नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू में बाद में आऊंगा, बट नेट क्यों बोले ना, बिकॉज आपने माइनसेस प्लसेस सारा एक साथ ले लिया है. नेट अमाउंट निकाल रहे हैं. एक बार जस्ट ट्रीट इट लाइक दैट एंड I'll get to it a little later. So it will be minus 50 plus 10 by 1 plus r plus 40 by 1 plus r square plus 20 by 1 plus r cube plus 35 by 1 plus r to the power 4. यही तो होगा इसका वैल्यू. अगर -50 से प्रॉब्लम है तो इसको हटा देते एक बार, इसको भी हटा देते, इसको भी हटा देते. इट्स फाइन, विल डू इट दिस वे. So let's say the present value of cash flows at time 1, 2, 3, 4. Let's remove 50. So 1, 2, 3, 4 पे 10, 40, 20, 35 का अमाउंट है. आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. जब ये 30, 30, 30, 30 होता तो NI/Y PV PMT लगा सकते थे. अभी तो PMT function is not going to work over here because they are unequal amounts. Because they are unequal amounts. Your PMT function is not going to work over here. Correct? So what is the other alternative that I have? So इस सम को कैसे करेंगे? आपका इंटरेस्ट रेट अभी भी 10% है. वी आर कीपिंग दैट कांस्टेंट. नाउ इफ यू नोटिस ऑन द सेकंड रो, सेकंड बटन ऑफ योर कैलकुलेटर, यू गॉट समथिंग कॉल्ड CF एंड उसके बाजू में एक बटन देखोगे उसके राइट साइड में, यू गॉट एन NPV. सो देयर इज अ CF बटन, देयर इज एन NPV बटन. अग्रीड? CF बटन, CF स्टैंड्स फॉर कैश फ्लोज. सो एक बार CF प्रेस करिए कैलकुलेटर पर. स्क्रीन पे CF 0 आ रहा है. अभी सबसे पहले कैश फ्लोज में अगर पुराना कुछ भरा हुआ होगा, आई वॉन्ट टू इरेज दैट. Now if you look at the bottom left button of your calculator, that is CC. Above में क्या लिखा है? Clear work. So bottom left button, the most जो एकदम यहाँ पे बटन होगा, यहाँ पे होगा CC लिखा है वहाँ पे, that is clear work. तो clear work करने के लिए कैसे clear करना है? Second CC. So सबसे पहले CF ओपन करना पड़ेगा. CF प्रेस करोगे तो कैश फ्लो खुलेगा. कैश फ्लो में जाकर के सेकेंड CC करना, कैश फ्लो में जाकर के सेकेंड CC. सो सेकेंड CC. सो यू ओपन कैश फ्लो फर्स्ट एंड देन यू क्लियर वर्क इनसाइड कैश फ्लो. बहुत सारा चीज है इसमें, तो अपने को क्लियर क्या चीज का काम करना है? कैश फ्लो का. सो फर्स्ट यू गो टू CF, देन यू डू सेकेंड CC एंड योर कैश फ्लोज विल बी क्लियर्ड. सारा जीरो हो जाएगा. करेक्ट? पैरेलली करिएगा. नाउ आई वांट टू इंसर्ट दीज कैश फ्लोज. अभी स्क्रीन पे अगर देखोगे, CF बटन प्रेस करोगे तो स्क्रीन पे CF 0 इक्वल्स टू 0 दिखा रहा है. मेरे पास CF 0 मतलब कैश फ्लो एट टाइम 0. 0 पे कुछ है नहीं है. कंप्यूट और एंटर के साइड में देखो, एरो अप डाउन बना हुआ है. दैट इज स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन. सो वी कैन स्क्रॉल डाउन. यू सी यू गेट अ C01 ऑन द स्क्रीन, राइट? लेट्स टाइप 10. You need to press enter for the 10 to get saved in C01. So scroll down करके C01 में आए, 10 and press enter किया, C01 में सेव हो गया. अच्छा, उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, F01 दिखाएगा. एक बार के लिए इग्नोर कर लो, I'll come to that a little later. नीचे आइए, वापस स्क्रॉल डाउन करिए, C02 दिख रहा है.
C02 में you need to put a 40, enter, scroll down, F2 इग्नोर करो, C03 में आओ, C03 में enter 20, scroll down, you get C04, C04 में you'll get a 35, you press enter, after pressing 35 gets stored under C4. हुआ यहाँ तक? Scroll down. तो आपने C03 एंटर नहीं किया था. इफ आफ्टर C03 यू फाइंड CF0 वापस आ रहा है, इसका मतलब आपने C03 में एंटर प्रेस करना भूल गया. बिकॉज जब तक 3 में डेटा नहीं डालोगे C04 नहीं आएगा स्क्रीन पे. जब तक 4 नहीं डेटा स्टोर करोगे तब तक 5 नहीं आएगा. यू कैन नॉट स्क्रॉल डाउन एंड गेट एन इन्फिनिटी तक वैल्यूज. सो यू डिड नॉट स्टोर C03. So ये सब you will understand these things as you start using the calculator. So if you did not put C03 में enter, C04 नहीं आएगा स्क्रीन पे. तो C03 में एंटर करने का एंड फिर C04 लाने का. Everybody okay? Press the NPV button. You will see on the screen I equals to 0 दिखा रहा है. Press the NPV button and you will see on the screen I equals to 0 दिखा रहा है. That stands for your interest rate. Interest क्या है अपना 10. तो 10 टाइप करके एंटर प्रेस करो. अगर बैक स्पेस चाहिए तो देखो सेकेंड रो लास्ट बटन इज बैक स्पेस. अगर कोई का एरर हो रहा है कुछ तो बैक स्पेस का बटन इज ऑल्सो देयर, राइट. 10 एंटर किया, I इक्वल्स टू 10 एंटर किया, 10 प्रेस करके एंटर. अभी स्क्रॉल डाउन करो एनपीवी के अंदर ही गाइस, क्विकली प्लीज ऑन द स्क्रीन. एंड देखो एनपीवी इक्वल्स टू 0 दिखा रहा है स्क्रीन पे. कंप्यूट बटन प्रेस करो, आंसर निकल के आ जाएगा 81.08. नाउ डोंट इरेज द स्क्रीन, जस्ट बी विथ मी. करेक्ट, 81.08 आया. अभी स्क्रॉल डाउन करके वापस कंप्यूट करो, नेट फ्यूचर वैल्यू आएगा दैट इज 118. दैट इज 118.71. डिड एवरीबॉडी गेट दिस? वापस स्क्रॉल डाउन करो, एनएफवी आएगा स्क्रीन पे एंड फिर कंप्यूट प्रेस करो, दैट इज अ नेट फ्यूचर वैल्यू. ऑलराइट. So now, if I was using the app, okay, just a second, 81.08 यहाँ पे आया NPV. Now when you're looking at the plastic versions of the calculator, that is a not professional one, उसमें NFV का ऑप्शन नहीं है. जो मेटल बॉडी वाला कैलकुलेटर है उसमें NFV है. इतना कोई बिग डील नहीं है. This answer into 1.10 to the power 4 is equal to NFV. इतना सा के लिए 1000 देने का कोई पॉइंट नहीं है. प्रोफेशनल वर्जन में ये NFV एक्स्ट्रा है, नॉट अ बिग डील. एनपीवी निकल गया, इंटू 1.10 टू द पावर 4 करोगे तो आंसर आ जाएगा ना एनएफवी, नेट फ्यूचर वैल्यू. गाइस बोलो, कॉन्सेंट्रेट. एवरीवन इज विथ मी ऑन दिस. बोलो एवरीबडी, कंफर्टेबल? एनपीवी में सो व्हाट वी डू इज वी गो टू कैश फ्लो. वी प्रेस द CF बटन, वी गो टू कैश फ्लो. एक बार सुन लो, पैरेलली नहीं कर पाओगे. अपने क्या लॉजिक समझो कैलकुलेटर का. अपने CF बटन के अंदर गए और सेकंड CC करके CF के अंदर सब क्लियर वर्क कर दिए. वंस द क्लियर वर्क इज डन, CF बटन में आई नीड टू स्टार्ट सेविंग वैल्यूज. इफ आई गो टू CF बटन, इट शोज CF0 एंड देयर इज नो कैश फ्लो ओवर हियर, सो आई कैन जस्ट सिंपली इग्नोर इट एंड मूव फॉरवर्ड. C01 में 10 सेव करना है तो 10 प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, तब जा करके डेटा विल गेट सेव्ड. देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, F01 को एक बार F को इग्नोर कर दो पूरा, बाद में आऊंगा उस पर. C02 में 40 सेव किया, एंटर, स्क्रॉल डाउन 20 सेव इन C03 एंड स्क्रॉल डाउन एंड 35 सेव इन C04. अगर कोई गलती से डेटा स्टोर हो गया है, इफ यू एंटर्ड अ रॉन्ग डेटा, पूरा डेटा इरेज करने का जरूरत नहीं है. ऊपर नीचे जाकर के यू कैन ऑलवेज ओवरराइट द डेटा. बैकस्पेस तो व्हेन यू आर टाइपिंग उस समय एरर चेक करने के लिए. एंड अगर कोई डेटा ही गलत एंटर कर दिया है, यू कैन ऑलवेज स्क्रॉल अप एंड डाउन, गो टू द लाइक सपोज सारा डेटा एंटर करने के बाद आई गो टू C01, मैंने 40 की जगह 4 एंटर कर दिया था गलती से, आई प्रेस 40 एंड आई प्रेस एंटर, वो ओवरराइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. एनपीवी इज दिस फॉर्मूला, 10 का वैल्यू, 40 का वैल्यू, 20 का वैल्यू, 35 का वैल्यू ओवर हियर. सो आफ्टर आई एंटर्ड द कैश फ्लोज, आई गो टू द एनपीवी बटन. उसमें वो आई मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है. I enter 10 press enter, interest save हो गया. I scroll down in the same button and I press compute, I get the NPV, that is 81.08. NFV button खाली metal body वो professional version में है, but it doesn't matter. Now understand, guys, 10 को 1 plus R से डिस्काउंट करो एंड उसके बाद 1 plus R to the power 4 से मल्टीप्लाई करो, तो अल्टीमेटली तो 1 plus R क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया. देखो
40 को 1 प्लस आर स्क्वायर से डिस्काउंट करो, दैट इज हाउ यू गेट द पीवी, एंड देन यू टेक 1 प्लस आर टू द पावर 4, सो डोंट यू थिंक वो 2 टाइम्स कंपाउंड हो गया? 20 को यहां लेके आओ फिर यहां लेके जाओ इज एज गुड एज यहां से यहां डायरेक्टली लेके जाओ, इज द सेम थिंग. सो एनपीवी मेरा निकल गया, तो एनपीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n विल गिव मी द नेट फ्यूचर वैल्यू इमीडिएटली. सो हाउ डज इट मैटर? आई डोंट नीड द प्रोफेशनल कैलकुलेटर फॉर दिस. सो एनपीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n इज गोइंग टू गिव यू नेट फ्यूचर वैल्यू. पीवी मतलब सारे कैश फ्लो का वैल्यू आज, एफई मतलब सारे कैश फ्लो का वैल्यू एट मैच्योरिटी, दैट्स ऑल. पीवी मतलब सारे कैश फ्लोज का वैल्यू आज, एंड एफई मतलब सारे कैश फ्लो का वैल्यू एट मैच्योरिटी, दैट्स ऑल. बोलो, इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस बिट? सो एनपीवी निकल गया, इंटू 1.10 टू द पावर 4 करेंगे, नेट फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा. बोलो, कंफर्टेबल टिल हियर और नॉट गाइस? एवरीवन यहां तक ठीक है? टेक इन दिस डाउन, टेक द आंसर्स, टेक दिस एनएफवी डाउन. एंड ये पूरा चीज कैलकुलेटर वाले वीडियो में समझाया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है? एंड दिस क्लास विल ऑल्सो गेट अपलोडेड, सो अगेन डोंट वरी अबाउट इट. बोलो क्विकली, यहां तक ओके? आगे बढ़ूंगा. हाँ, और नई वाला पार्ट पे आ रहे हैं. जस्ट लेट मी डू वन सम एंड परपेचुइटी एंड आई विल गिव यू एन ऑफ. ठीक है? स्टैमिना बढ़ाओ. अच्छा ठीक है, अनइक्वल अनइवन कैश फ्लोज का दूसरा सम नेक्स्ट डे करेंगे. लेट मी जस्ट कंप्लीट माय टेबल, लेट मी डू द परपेचुइटी एंड देन आई लीव यू. परपेचुइटी बहुत सिंपल है, परपेचुइटी का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है. परपेचुइटी में द बेस्ट एग्जांपल कुड बी लाइक यू नो स्कॉलरशिप फंड और समथिंग. नाउ से फॉर एग्जांपल योर कॉलेज गिव्स एन अवार्ड. वो होता है ना लोगों के नाम पे अवार्ड एंड मेडल वगैरह रहते हैं, XYZ मेडल एंड ऑल नेम पे. नाउ दैट इज एवरी ईयर इट इज हैपनिंग, दैट इज टिल इटर्निटी. मतलब हमेशा के लिए वांट टू गिव दैट अवार्ड टू समवन. Right? Suppose the award का value is $1,000. Every year you are giving $1,000 का scholarship to a student, and the interest rate in the market is let's say 8%. So interest rate 8% है, and $1,000 is your scholarship needed. ठीक है? कितना amount आपको deposit करना पड़ेगा जिससे the scholarship is going to be funded? It's very simple. मैं एक ऐसा एक्स अमाउंट डिपॉजिट करूंगा जिसका 8% एवरी ईयर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1000. सो कितना अमाउंट डिपॉजिट करूंगा? 1000 डिवाइडेड बाय 8%, दैट विल गिव यू 12,500 आएगा. कैलकुलेट करके देख लेना. 1 by 0.08 is 0.125. सो दिस विल बी दिस वैल्यू 12,500. हाँ ठीक ही है, 12,500 आएगा. अभी आप बोलेंगे कि 8% ये 12,500 कांस्टेंट कैसे वर्क करेगा? थिंक, टाइम 0 पे यू डिपॉजिटेड 12,500, 8% के हिसाब से आपको 1 पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 1000. 12,500 इंटू 8% इज 1000. अभी कंपाउंडिंग नहीं होगा क्योंकि 1000 का तो स्कॉलरशिप आप दे दिए हो, तो योर अगेन प्रिंसिपल बैलेंस इट बिकम्स 12,500 प्लस 1000, बट यू डिस्ट्रीब्यूट दैट 1000, सो यूर अगेन लेफ्ट विद 12,500. समझ में आ रहा है कंपाउंडिंग क्यों नहीं हो रहा है? इट्स अ स्कॉलरशिप फंड. यू विल पे दैट 1000 टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु नीड्स दैट मनी. नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 12,500 ही रीइन्वेस्ट होगा, उस पर वापस 8% अर्न करोगे, 1000 अर्न करोगे, वो 1000 वापस बांट दोगे, तो प्रिंसिपल तो वापस ही 12,500 बच रहा है ना. इट्स नॉट कंपाउंडिंग बिकॉज यू आर पेइंग ऑफ दैट 1000 ओवर ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ ईयरली बेसिस, ऑन एन एनुअल बेसिस. बोलो, इज एवरीबडी फॉलोइंग दिस पार्ट? सो 1000 कंपाउंड नहीं होगा ना यहाँ पर. सो फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है. दैट इज आइदर बुक में जो रेट यूज किया A/I या A/R दिया है, और A/I they write it at times, but I can also simply write it as PMT divided by I/Y. PMT is the equal amount at regular intervals, I/Y is the rate per period. तो अमाउंट जो डिपॉजिट करना होगा that will give you the PV. The present value, the amount to be deposited is PMT by I/Y. हम लोग A/I भी लिखते हैं. परपेचुइटी के लिए भी राइट A/I एकदम इजीली. That is the amount required on a regular basis divided by the interest. So perpetuity, it's going to continue forever. This chain will not break if 8% constant rate of interest remains. ये chain break नहीं होगा because every year 1000 देगा, फिर 12,500 बचेगा, फिर 8% आएगा, फिर 1000 मिलेगा, फिर वो दे दोगे, फिर 12,500 बचेगा. It's gonna keep on going on till perpetuity for infinity time period, for infinite time period. बोलो, following. So कुछ टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स होता है. I'll come to what is preference shares and all. तो उन सब में it keeps on going on forever. परपेचुअल स्टॉक्स एंड ऑल भी होते हैं.
विल डिस्कस ऑल दैट. सो परपेचुइटी का फॉर्मूला वहां लगता है. बोलो कंफर्टेबल टिल हियर एवरीवन? श्योर यहां तक? वी आर नॉट डन विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी. विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर द नेक्स्ट डे. यू कैन टेक द फॉर्मूला PMT by I by Y or A by I. That is your perpetuity का value today. That is your perpetuity का value today. बोलो done? Alright, we'll continue from here tomorrow.